Yeah. Sir, can you hear me and see me once again? Just one last time I'll ask Yes, you. ma'am. Yes, ma'am. It is visible Okay, also. great. Yes, ma'am. So, good evening, ladies and gentlemen. Uh, Good evening to this wonderful workshop on a topic that's very, very different. It's called constructivism. And let's learn more about it before uh, we talk. So, what is the constructivism in the classroom? Constructivism, basically, from the very word, you must understand that you're constructing something. Now, what is constructing something inside the classroom is what we need to understand. Basically, we keep doing it inside out. When we are inside the classroom, there are many times when we do it, but we may never have understood that this is constructivism. So let me quickly ask you to revisit stories. So let's. Have you heard about Cinderella? Yes, I'm sure all of you know. Have you heard about Goldilocks and the Three Bears? Story of the hare and the turtle, story of the rabbit and the lion. Now, if I talk about these stories, you have an idea in your head. You have a mental picture. Okay, Cinderella is somebody who had a stepmother, she had a stepsister. She was she worked a lot at her house. And one day, the king's guards, they invited all of them for a ball, a party. And she went to the party, but before that, she actually saw she met fairy godmother. She got a golden carriage. She got a nice dress. But the promise was at 12 o'clock, everything will come back to normal. So we know the story. All right. So the minute I say that, oh, it's like a Cinderella, oh, she's like a Cinderella, you've already constructed in your head. What is a Cinderella? Oh, this is a Cinderella. So you've already brought it down, downloaded that memory in your head. Now, using Cinderella, I can build on the story. I can talk to you another concept like it's a rags to riches story. You know, गरीबी से लेके अमीरी तक की कहानी, बहुत सारे कहानी हमारे बॉलीवुड के मूवीज हैं जहाँ पे हीरो जो है बिल्कुल गरीब होता है और वहां से वो बहुत बड़ा अमीर इंसान बन जाता है. तो कुछ इसी प्रकार की कहानी है उसमें. अगर हम गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स की कहानी सुने तो थोड़ा काल्पनिक है. इट्स वेरी इमेजिनरी क्योंकि बेयर आपसे बात करते हैं. आप बेयर के घर में जाते हैं. उनका खुद का खीर बनाया हुआ है. 3 अलग बोल्स में खीर है. एक्चुअली बेसिकली कहानी क्या है? बच्चे ने माँ की बात नहीं सुनी और राह भटक के फॉरेस्ट जंगल में बेयर्स के घर पे चली गई. वैसे तो बेयर्स के घर होते नहीं है. दूसरी बात, बेयर्स खाना नहीं बनाते. लेकिन वो कहानी बच्चों को समझ में आने के लिए कि बच्चे ना सुने तो खतरा कैसे, आप खतरे का सामना कैसे करोगे. लेकिन कहानी अच्छी है, हैप्पी एंडिंग है क्योंकि छोटे बच्चों के लिए है. लेकिन कुछ ऐसा ही पॉइंट लेकर आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं कि देखो, जैसे कि गोल्डी लॉक्स ने अपनी माँ बाप की बात नहीं सुनी थी, इस कहानी में भी इसने, इस किरदार ने नहीं मानी और आगे जाकर मुश्किलें मुश्किलों का सामना करना पड़ा. Story of the hare and the turtle. You know, it's like haste makes waste. जल्दीबाजी करेंगे तो नुकसान होता है. Slow and steady wins the race. ये कहानी भी हमें पता है कि धीरे और संभलते हुए बरकरार काम करते जाएंगे तो आप जरूर अंतिम मुकाम पर पहुंच पाएंगे और you will be able to win the destination. Then story of the rabbit and the lion. लायन गुरूर बहुत ज्यादा था, उसको अपने अहंकार बहुत ज्यादा था, तो उसको कुएं में अपने ही रिफ्लेक्शन को दिखाकर कुदवाया गया और वो उसने आत्महत्या कर ली और रैबिट बच गया और सारे जो जंगल के लोगों को बचा लिया क्योंकि रैबिट रोज एक एनिमल को पकड़ के खाता था, एक जानवर को पकड़ के खाता था. तो इसके आधार पे कुछ बनाना, यानी ऑलरेडी आपको एक कॉन्सेप्ट बताना जो लोगों को पता है और उसके ऊपर आपको आगे बिल्डअप करना. अब लेट्स स्पिन अ टेल विद अ ट्विस्ट. अब यही चीज मैंने आपको बताई कि चलो रैबिट और लाइन की कहानी तो आपको पता ही है. इसमें रैबिट वीकर किरदार है यानी कमजोर किरदार है, लाइन स्ट्रॉन्गर किरदार है. राइट, इट्स प्लेइंग द स्ट्रॉन्गर रोल. लेट्स टर्न इट. लेट्स मेक द लायन द पुअर विक्टिम एंड रैबिट द कनिंग king of the forest. Now let us write the story. But before I do something like that, I give a task in the English class or I give the task in the Hindi, in my Hindi class, or I tell them, imagine आपने अकबर और बीरबल की कहानी सुनी जहाँ बीरबल इंटेलिजेंट है और अकबर महाराजा है जहाँ पना है. अब उल्टा सोचें, बीरबल राजा है और अकबर उनका
सेवक है और बड़ा शातिर सा सेवक है, तो कहानी कैसे होगी, कैसे बुना जाएगा। या बीरबल बड़ा शातिर इंसान है, शातिर नहीं, बहुत ज्यादा कपटी इंसान है, तो स्टोरी कैसे बनेगी। इसके लिए पहली वाली स्टोरी जानने की जरूरत है आपको। यू नीड टू नो द एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, अब तक मैं क्या कहना चाहती थी, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है कंस्ट्रक्टिविज्म है। आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, किसी चीज को बना रहे हो। आप जानते हो किसी चीज को बनाने के लिए एक आधारशिला चाहिए, एक फाउंडेशन चाहिए। ये फाउंडेशन वो है जो आप पहले से जानते हैं, और उसके ऊपर आप घर बनाते हैं, उसके ऊपर आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो नया नॉलेज जो है, नए नजरिया पर्सपेक्टिव्स जो है, या एग्जिस्टिंग पर्सपेक्टिव्स को, पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ावा देना। जैसे आज तक तो मैंने सोचा था कि हेयर एंड टर्टल की कहानी में हेयर जो है हार जाता है, टर्टल जीत जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से आप सबको अब नई कहानी के बारे में जानकारी होगी कि कैसे मैनेजमेंट वालों ने नई कहानी उससे बना ली, कि कैसे हेयर सेकेंड स्टोरी में हेयर जीतता है, क्योंकि इस बार वो सोता नहीं। वो कहते हैं चलो हम एक और बार फिर रेस लगाएंगे, और इस बार वो सोता नहीं है, तो टर्टल हार जाता है, यानी खरगोश जीत जाता है, और कछुआ जो है हार जाता है। फिर तीसरी कहानी बनाई जहां कछुआ चालाक बनता है और बोलता है चलो एक और बार रेस लगाते हैं। अब पानी आ जाता है बीच में, तो कछुआ जो है तैर के जा पाता है, और खरगोश हार जाता है। फिर चौथी कहानी एक आती है जहां पे कछुआ और खरगोश मिलकर रेस जीतते हैं, जहां पानी जब आता है तो खरगोश कछुए के ऊपर बैठ जाता है, और जब कहीं पे उसको कूद कूद कर जाना है तो कछुए के ऊपर खरगोश के ऊपर कछुआ बैठ जाता है। यानी मिलकर काम करेंगे तो जीत हासिल करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर एक ने अपने अपने काबिलियत पर काम किया, और उसकी काबिलियत के प्रदर्शन के बाद, और if I use my strong point and you use your strong point, together we work in a team, we are definitely about to win the game, or win the competition, or win the target. So that is expansion of point of view. So कछुए और खरगोश की कहानी में मैनेजमेंट वालों ने स्टोरी को नया एक रूप दे दिया। अब इसमें सब में आधारशिला क्या है? पहले से किसी चीज के बारे में जानकारी रखना। मैं कछुए और खरगोश की कहानी के बारे में जानती ही नहीं हूँ, तो मैं उसको उसके आगे सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी कैसे बनाऊंगी? या मुझे सिंड्रेला के बारे में बताना हो, या मुझे गोल्डी लॉक्स के बारे में बताना हो, तो पहले मुझे गोल्डी लॉक्स की कहानी के बारे में तो जानना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने क्लाइमेट चेंज पे आज हम स्टोरी बनाएंगे, पर पहले क्लाइमेट क्या है, वो पहले कैसा था, सीजन्स क्या थे, अब चेंज कैसे आ रहा है, अब चेंज के बारे में तब बताएंगे ना जब पहले से हमें जानकारी हो। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म कुछ ऐसा है। अब आप सब्जेक्ट और एग्जाम्पल देखें। अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं जब तक नाउन क्या है बताती नहीं, मुझे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में कैसे पता चलेगा? तो यहाँ नाउन मेरा एग्जिस्टिंग कॉमन नॉलेज हो गया। ऐसे हिंदी में कारक, कारक पता हो तो मैं संप्रदान और अपादान वगैरह कारक के बारे में समझ सकती हूँ। सोशल स्टडीज में जब तक मुझे गवर्नमेंट क्या है पता नहीं, तो मैं डेमोक्रेसी हो, या सोशलिस्ट गवर्नमेंट हो, या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, उसके बारे में कैसे बता सकती हूँ? यानी डेमोक्रेसी हो, ओलिगार्की, ओलिगार्की इज जहां यू हैव अमीर आदमियों की जो मंडली है वो रूल करता है। ऑटोक्रेसी यानी एक इंसान अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन कुछ ही लोगों की चलती है। डिक्टेटरशिप जैसे कि आपने हिटलर की सुनी है कहानी, तो वो भी गवर्नमेंट चलाते थे, लेकिन अलग अलग किस्म की गवर्नमेंट्स थे। ऐसे ही ज्योग्राफी जो है, उसमें ट्रिब्यूटरीज होती क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज अगर आपने बताया नहीं कि है चीज क्या, तो आगे रिवर्स के जो अलग अलग शेप्स बनते हैं, या वाटर बॉडीज के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप कैसे समझाएंगे? तो पहले, हाँ नदी क्या है लोगों को पता है, लेकिन नदी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटरी क्या, ट्रिब्यूटरी क्या। डिस्ट्रीब्यूटरी यानी जब नदी बहकर अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है, और ट्रिब्यूटरी वो जो अलग अलग नदियां मिलकर एक बड़ी नदी को बनाता है, तो ट्रिब्यूटरी वो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया नहीं, तो नए नाम या नए नए वाटर बॉडीज उसके बारे में आप कैसे समझा सकते हैं? एक एक शेप है, ज्योग्राफी टीचर्स जानते होंगे कि रिवर्स में भी बफेलो शेप है। मियांड्रिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मियांड्रिंग है, यानी पानी जो है बहकर पूरा वेवी फॉर्म में जाता है। यानी कैसे कहते हैं उसको, गैंजेटिक प्लेन्स में सीधा बहने लग जाता है, लेकिन फिर भी कई सारे जगहों पे वो मियांडर करता है। इट जस्ट गोज लाइक अ वेव, दैट्स मियांडरिंग। साइंस में फिजिक्स आपने कभी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाया हो कि हीट क्या है,
और फोकल डिस्टेंस क्या है, तभी तो आप ग्लास पे हीट को फोकस करके पेपर जला सकते हो। पर ये कॉन्सेप्ट बच्चे ने करा जरूर है, लेकिन अगर आपको उसको कनेक्ट करना हो तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में जानना जरूरी है। सो ग्लास रखेंगे, बचपन में हम खेलते हैं कि माइक्रोस्कोप पे अगर आपने फोकस कराया, सनलाइट गिरा तो वो जल जाएगा पेपर। अब ये चीज बच्चे ने बचपन में किया है तो आप जाकर फोकल डिस्टेंस समझा सकते हो फिजिक्स में, राइट। ऐसे अगर आपको बिलिंग कॉन्सेप्ट समझानी हो तो आपको पहले मनी और डेसिमल पॉइंट्स सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि 5 रुपए 12 आना नहीं, 25 रुपए का हो या 50 रुपए 50 पैसे की चीज हो, तो मुझे डेसिमल पॉइंट्स भी आना चाहिए, मुझे मनी का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, तब जाके मैं बिलिंग कॉन्सेप्ट मैथ में पढ़ा सकती हूँ, ताकि मैं उसके कॉन्सेप्ट समझा सकूं। सो you need to know some base knowledge to build on that. So या तो एग्जाम्पल्स आपके पास हो या कुछ कॉन्सेप्ट एग्जिस्टिंग हो जिसके ऊपर आप बना सकते हो। दैट इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म। इतना आसान है, नाम बहुत भयंकर है, काम है बहुत आसान। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसे आपके लिए फायदेमंद है, न कि ट्रेडिशनल क्लासरूम। क्योंकि आपके स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम के बारे में, ट्रेडिशनल क्लासरूम जो है कैसा होता था, करिकुलम जो है आप करिकुलम जो है पार्ट्स ऑफ द होल, यानी ये चैप्टर है एनवायरनमेंट के बारे में, इसमें हम ये सीखेंगे ये सीखेंगे ये सीखेंगे और आपने पढ़ाना चालू किया। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में कैसा होता है, पहले आप बड़े कॉन्सेप्ट को, यानी चलो आज हम एनवायरनमेंट के बारे में सीखेंगे। अब एनवायरनमेंट में तुम्हें क्या पता है, अब मुझे एनवायरनमेंट के बारे में पता है कि एनवायरनमेंट यानी नेचर है, तो एक बोलता है एनवायरनमेंट में मैडम एनिमल्स भी आते हैं, तीसरा बोलता है एनवायरनमेंट में तो पता है आइस भी आता है, ग्लेशियर भी आता है, चौथा बोलेगा एनवायरनमेंट में सीजन्स आते हैं, और फिर टीचर उसको सबको मिलाकर हाँ ये सब कुछ एनवायरनमेंट होता है। न कि आज हम एनवायरनमेंट के चैप्टर नंबर ग्लेशियर्स को पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे वाटर बॉडीज के बारे में, तीसरा हम पढ़ाएंगे वाटर साइकिल के बारे में, ऐसा नहीं। So this is the difference between traditional classroom and constructivist classroom. Similarly, करिकुलम जो है फिक्स्ड है और उस फिक्स करिकुलम पे ही आप खेलते हैं, जबकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में क्या होता है, बच्चे ने सवाल पूछा, बच्चे के सवाल के आधार पे और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप क्लास को एक नई दिशा देते हैं। चलो एनवायरनमेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया, आपको क्या पसंद है इसके बारे में, मैडम मुझे ये जानना है, मुझे तो ग्लेशियर के बारे में जानना है, मैंने आजकल पढ़ा है कि अंटार्कटिका में आइस जो है कम होता जा रहा है। कोई बोलता है हाँ मैडम, उसके बाद आप क्या नदियों के बारे में बता सकते हैं, हमने सुना है कि नदी क्लीन गंगा प्रोजेक्ट आ गया, तो वो कैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। मैडम बीजिंग में या चाइना में ना फ्लड्स हुआ था, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। कुसुम मैम, एम आई नॉट ऑडिबल? सर एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, just let me know if I'm not, because I have a little problem on my end, लेकिन आपको सुनाई दे रही है, मैं समझ गई, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही शायद इंटरनेट के प्रॉब्लम से। नहीं नहीं मैम, सुनाई दे रही है मैम। ठीक है, थैंक यू सो ओके मच। मैम। यस तो मैम। जब परस्यूट ऑफ स्टूडेंट्स यानी बच्चों का जो सवाल होता है ना, उसके आधार पे आप पूरे चैप्टर को यानी अलग अलग टॉपिक को लेकर उसको मिश्रित करके बताएं कि भाई ये सब कुछ ही एनवायरनमेंट है। तो बच्चे को भी लगता है कि चलो मैंने कॉन्सेप्ट बताया और मेरे जो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके मेरे क्वेश्चन का भी मैम ने उसकी जो है उसकी वैल्यू रखी और उसके आधार पर मैम ने चैप्टर आज आगे चलाया। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी योगदान लिया गया, उसको उसकी मेरे योगदान की भी महत्व है क्लास में। प्राइमरली टेक्स्ट बुक्स एंड वर्कबुक्स ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेस ऑफ मटेरियल एंड मैनिपुलेटिव मटेरियल्स। चलो आज हम है ना एनवायरनमेंट के बारे में सीखेंगे। तुमको मैंने क्ले दे दिया, तुम्हें जो बनाना है बना लो। तो एक बच्चा बोलेगा मैं तो नदी बनाऊंगा क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट यानी नदी, एक बताएगा मैं स्नो बनाऊंगा, तीसरा बताता मैं तो ट्रीज बनाऊंगा, चौथा बताता मैं तो सी बनाऊंगा। सो सबने अपने अपने चीजों को लिया, मैनिपुलेटिव मटेरियल्स, और उसके आधार पे टीचर ने बना दी एक बड़े पिक्चर की, आपने जो बोला वो भी सही है, आपने जो बोला वो भी सही है, और हम सबको मिलकर ये कॉन्सेप्ट है। सो मैं तो आपको सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में बता रही हूँ। अगर मुझे मैथ समझाना हो और मैं उनको बोल रही हूँ अच्छा फ्रैक्शन का क्या मतलब है, चलो मैं या तो टेक्स्ट बुक खोल के बोलूँ चलो आज फ्रैक्शन वाला चैप्टर खोलो, चलो पेज 1 में ये है, इसकी बजाय मैं बोलती हूँ कि आपको मैंने एक राउंड पिज्जा का शेप, पिज्जा घर से लाने को बोला, पिज्जा का शेप बना दो, ये ब्लॉक्स बना दिए, इसमें से 4 पीसेस में से एक पीस निकालो, किसी और को कुछ और शेप दे दिया, उसके पेज उसके कागज के 4 टुकड़े बना दे, जो भी बता दिया, और फिर सब इसको इसके आधार पे आपने बुनकर
उसको अपने पढ़ाई में शामिल करा ली और सबको पिरो के एक कॉन्सेप्ट बताया, तो उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लास में क्या होता है, बार बार एक ही चीज आप समझाते रहते हैं, जबकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास में आपको बताने की जरूरत नहीं, बार बार किसी के सर पे डालने की जरूरत नहीं, इंटरेक्टिव है, क्योंकि बच्चे ने खुद से अपने जानकारी के आधार पर सारा कुछ कॉन्सेप्ट बनाया है, तो उसको तो पहले से समझ में आता है और उसके भी व्यू पॉइंट को लिया गया, तो जरूर पसंद करेगा। टीचर जो है ट्रेडिशनल क्लासरूम में नॉलेज बांटती है और बच्चे नॉलेज हासिल करते हैं, जबकि यहाँ आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर और बच्चों के बीच में वार्तालाप के दौरान बच्चे खुद के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि टीचर ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, अब बच्चे सबको बुनकर पिरोकर एक साथ उसको कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मुश्किल काम नहीं है, जैसे आपको मैंने बताया फ्रैक्शंस। अब मैंने आपको बताया चलो ये पिज्जा है, पर मुझे 1.5 पिज्जा चाहिए। अब 1.5 पिज्जा आप कैसे बनाएंगे? तो बच्चा बोलेगा मेरे पास तो एक ही है मैम, मैं 1.5 पिज्जा कैसे दूंगा? तो मैंने किस चीज के बारे में कहा, मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में कहा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन यानी एक का कुछ हिस्सा, लेकिन एक से ज्यादा का हिस्सा लेना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो बच्चे को समझ में आ गया, अच्छा ये मैडम कहना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेकर, न कि चैप्टर खोलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, या आप ऐसे सारे एग्जाम्पल देने के बजाय उनसे ये करवाएंगे तो काम ज्यादा आसान है। टीचर का रोल जो है ना ट्रेडिशनल क्लास में डायरेक्टिव है, मैं डायरेक्शंस दे रही हूँ और मेरे पास अथॉरिटी है, आप सुनने के पाबंद हो, आप सुनेंगे और समझेंगे। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर का रोल इंटरैक्टिव है और नेगोशिएशन के आधार पर है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है, ठीक है मैं आपकी बात मानती हूँ, अब हम ये करेंगे, अब आपको क्या लगता है, देयर इज नेगोशिएशन। आप बच्चे को ये समझा रहे हो कि जो तुम्हारा पॉइंट करेक्ट है, लेकिन अब हम सबसे बेस्ट पॉइंट लेकर हम वहां पे आएंगे, तो बच्चे को लगेगा कि मेरा भी मायना, मेरे कहने का भी मायना रखते हैं मैडम। असेसमेंट जो है, अब हम ट्रेडिशनल क्लासरूम के असेसमेंट वाले भाग में आएंगे। असेसमेंट वहां टेस्टिंग एंड करेक्ट आंसर्स के आधार पे होती है, जबकि यहाँ बच्चे का करेक्ट और रॉन्ग आंसर नहीं है, बच्चा काम करता है, उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, अच्छा ये भी था, बच्चा खुद से ऑब्जर्वेशन देता है, उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू आते हैं, वो होता है टेस्ट। तो यहाँ पे प्रोसेस यानी जो तरीका है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रोडक्ट यानी जो फाइनल हासिल जो आपने की, नतीजा, राइट? तो रास्ता और नतीजा दोनों ही उतना इंपॉर्टेंट है, ना कि केवल नतीजा जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम होता है कि आपने टेस्ट लिखा, आंसर मिला तो वो करेक्ट है तो आपको पढ़ाई समझ में आ गई, नहीं, बात समझ में तब नहीं आती। दूसरी बात, ट्रेडिशनल क्लासरूम में नॉलेज को इनर्ट माना जाता है। इनर्ट मतलब एक ऐसा सामग्री जो कि बदलता नहीं है और मुझे पढ़ाना है, आपको सुनना है। यहाँ पे नॉलेज केवल एक चीज से के अंदर केंद्रित नहीं है, वो बढ़ता रहता है, वो बदलता रहता है रूप, वो एक्सपीरियंसेस के आधार पे, आपके अनुभूति के आधार पे बढ़ता रहता है, अलग दिशा लेता है। यानी मैंने, भले मेरे टेक्स्ट बुक में एनवायरनमेंट चैप्टर है लेकिन सिर्फ ट्रीज पढ़ाया गया है, मैंने क्लासरूम में लेकिन एनवायरनमेंट में ट्रीज के बारे में कुछ ही समय उस पर व्यक्त किया, बिताया है। बच्चों ने ग्लेशियर भी लिया, पानी भी लिया, मौसम भी लिया, तो मैं ये सब चीज को एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर सकती हूँ, राइट? या मुझे क्लॉजेस समझाने हो, या नाउन समझाना हो, या मुझे डिवीजन समझाना हो, तो डिवीजन केवल डिवीजन ही नहीं, डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी है। तो अगर बच्चा कहता है कि मैम हमने छोटे क्लास में सीखा है कि डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, हाँ बिल्कुल, तो चलो हम सब्ट्रैक्शन भी करके दिखाते हैं, हम डिवीजन भी करेंगे, हम उसको देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डिवाइडिंग, वैदिक मेथड मैथ में डिवीजन अलग है, नॉर्मल डिवीजन अलग है, वो सब लेकर हम बताएंगे ये सब कुछ डिवीजन ही होता है। तो इसलिए मैं जो बड़ा पढ़ा रही हूँ वो करेक्ट और आप जो समझते हो वो गलत, ऐसा नहीं, यहाँ सबके जो एक्सपीरियंसेस है बहुत मायने रखते हैं। ट्रेडिशनल क्लासरूम में केवल टीचर काम करती है, यहाँ टीचर ग्रुप और अकेले काम करता है, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ बच्चा समझ रहा है, जबकि यहाँ बच्चे ग्रुप में काम करेंगे, क्योंकि मिलकर उनको समझना है। अच्छा, जो मैंने भी बोला ठीक है, तूने भी बोला, चलो हम मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जहाँ ये चीज दर्शाया जाए, राइट? इसके फायदे क्या हैं? हाँ, टाइम लगता है, हर कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन जैसे कि अगर आप सीबीएसई स्कूल में हो और आपको मालूम है मल्टी स्किल असेसमेंट हमारे रिपोर्ट कार्ड में हमें भरना पड़ता है, 9th 10th के रिपोर्ट कार्ड में तो भरना पड़ता ही है,
छोटे क्लासेस में भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप लें जिसमें मैथ भी आ गया, एसएस भी आ गया और हिंदी भी आ गया, और तीनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट करवा दिया। तीनों का एक ही टास्क कराने के साथ साथ मल्टी स्किल असेसमेंट हो सकता है। अब जैसे कि मुझे क्या कहते हैं, मुझे समझाना है संधि, या मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति, यानी मुझे पोएट्री सिखानी है हिंदी में, और मैथ में टीचर को समझाना है क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट, राइट। और एसएस टीचर समझाना चाहती है एनवायरनमेंट, तो फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं कि या दिस इज एनवायरनमेंट, इसके दो भाग हैं जिसमें दो एलिमेंट्स है, तो फ्लो चार्ट दिखाकर पार्ट्स बाय पार्ट्स दिखा सकते हैं। एसएस टीचर जो है पूरा मॉडल या प्रोजेक्ट करा के करा सकते हैं। हिंदी टीचर उसमें पोएट्री करा सकती है, और तीनों मिलकर जब प्रेजेंटेशन किसी तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति को दिखाएंगे, तो उसको पता नहीं है कि वो ये वाला हिस्सा मैथ्स का है, ये वाला हिस्सा एसएस का है, ये वाला हिस्सा हिंदी का है। मिलकर प्रोजेक्ट दिखाया और 3 टीचर्स ने मिलकर असेसमेंट किया, तो मेरे एक ही काम में 3 सब्जेक्ट मेरा हो चुका, राइट। तो इसमें कितने लोगों को फायदा हुआ, टीचर को भी फायदा हुआ, बच्चे का भी समय व्यक्त बेमतलब जाया नहीं किया। बच्चा क्लासरूम में काम करेगा तो घर पे नहीं ले जाएगा, तो बच्चे के माँ बाप भी खुश, आप भी खुश, काम भी हो जाएगा। तो आप कर तो जरूर सकते हैं, है बहुत आसान। तो इसमें क्या होता है, एक तो एक्टिव तरीका है पढ़ाने का, क्योंकि बच्चा अपने पढ़ाई के लिए खुद जिम्मेदार है, बच्चा एक्टिवली पढ़ता है। प्रमोटिंग स्टूडेंट एजेंसी का मतलब अपने पढ़ाई के लिए मैं जिम्मेदार, राइट। मैं कितना समझती हूँ कितना नहीं, अगर मैंने इन्वॉल्वमेंट दिखाई तो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें एडवांस स्किल्स की भी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि मैं कल तक तो मैंने सोचा था मेरे चैप्टर में लिखा है ट्रीज ऑफ दिस शेप इज पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, आज मुझे मैडम बोलते पानी भी है, नदी भी है, हवा भी है, क्या कहते हैं, ग्लेशियर भी है, मौसम भी है, सब कुछ आता है एनवायरनमेंट में, ये सब कनेक्टेड है, क्लाइमेट चेंज भी कनेक्टेड है, तो क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाता है, राइट। इवैल्यूएशन स्किल्स बढ़ जाता है कि हाँ सही बात है, यहाँ पे मैंने गड़बड़ की, पेड़ काटा तो पानी का बारिश कम हो गया, बारिश कम हो गया तो क्या कहते हैं, बारिश कम नहीं, बारिश ज्यादा हो गया, या गर्मी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई तो स्नो मेल्ट हो गए, स्नो मेल्ट हो गए तो सागर का जो पानी बढ़ गया, सागर का पानी बढ़ गया, तो जो सागर के तट में जो रहते हैं या तटीय प्रदेश में जो रहते हैं उनके डूबने के सारे आसार नजर आ रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग, कुछ नया सोचने का भी मौका मिलता है, और दूसरे अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू, पीओवी का मतलब है पॉइंट्स ऑफ व्यू, पॉइंट्स ऑफ व्यू बढ़ाने के मौके आपको मिलते हैं। दूसरा, आप बच्चों से अपने काम पर सोचने पे मजबूर करते हो, रिफ्लेक्ट, आपने क्या बोला था उस दिन, अब आपको लगा ये जो आपने उस दिन बोला था और आज में कोई कनेक्शन है, हाँ मैम मुझे समझ में आ गया कि उसका इसके साथ कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस टॉपिक पे जरूर कनेक्शन था। उन्होंने सोचा, इवैल्यूएट किया, उसको अच्छी तरह से जज किया और फिर काम किया। इवैल्यूएशन स्किल्स बच्चों के बढ़ेंगे तो उनके जो सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। और दूसरा, इंटरमीडिएट स्किल भी आपको इसमें काम लगता है। इंटरमीडिएट मतलब कि बच्चों को मैंने जैसे बताया, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप मर्ज कर सकते हो। दूसरा, लर्निंग एक्टिविटीज आप करा सकते हो इन रियल वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल मैंने बोला चलो सब बच्चे, एनवायरनमेंट पे हमारा चैप्टर है, एसएस टीचर ने एनवायरनमेंट का टास्क दिया, उन्होंने बोला चलो तुम प्रोजेक्ट बनाओ। अब मैथ टीचर बोलती है ठीक है एनवायरनमेंट पे टास्क है ना, आप मुझे पहले बताओ कितने घरों में एसी यूज करते हैं, कितने घरों में कार्स हैं, एक घर में कितने कार हैं, और वो कौन कौन कार लेके जाता है, तो ये कितना एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं। और उसी समय हिंदी टीचर बोलते हैं कि भाई प्रदूषण पे कहानी है, तो कौन कौन से, प्लास्टिक पे लिखो, तुम प्लास्टिक पे लिख सकते हो या स्वच्छता पे लिख सकते हो, क्योंकि स्वच्छता से भी प्रदूषण अच्छा, स्वच्छता होगी तो प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण कम होंगे तो क्लाइमेट पे चेंज कम होगा। तो सब चीज को कनेक्ट करके एक्टिविटीज के साथ साथ एक टॉपिक पे काम कर सकते हैं। यानी सातवां पॉइंट जो है, लर्निंग को जो है अलग लर्निंग सेटिंग्स में आप ट्रांसफर कर सकते हो। पढ़ाई केवल टेक्स्ट बुक से में सीमित नहीं रह गया, आप प्रैक्टिकल काम भी करा सकते हैं। बच्चों को बोलो भाई तुम एसीज कितने हैं, कार्स कितने हैं, लोग कितने सारे कपड़े खरीदते हैं, चप्पलें कितने हैं, इन सबको कनेक्ट करो, क्योंकि ये सारी चीजों को जब ये फेंकते हैं तो कितना पोल्यूशन होता है, इसका आप जायजा ले सकते हो। आपका बिल कितना आता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट करा सकते हो, आपके पानी का बिल का क्या काउंट है, आप स्कूल में ऑडिट करा सकते हो, ये सब कुछ कनेक्ट करा सकते हो। बच्चे को उससे ग्राफ बनाने को भी बोल सकते हो। हमारा वैसे भी मैथ टीचर्स का फेवरेट टास्क है स्टेटिस्टिक्स, तो स्टेटिस्टिक्स ही करा दो, पाई चार्ट करा दो, बार ग्राफ बनवा दो, लेकिन इन सब का प्रैक्टिकल काम लगा के करेंगे तो आप उसको
तीन चार सब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। दूसरा, सोशल स्किल्स बढ़ता है, कम्युनिकेटिव स्किल्स बढ़ता है, कोलैबोरेटिव, क्योंकि आप अकेले नहीं करा रहे, आप बच्चों को ग्रुप में काम करा रहे हो। तो एक बच्चा प्रोजेक्ट बनाने में काम में लग रहा है, तो एक इंटरव्यू करने गया है, एक उसको कंप्यूटर पे बार ग्राफ बना रहा है, तीसरा वाटर ऑडिट करने गया है स्कूल का, चौथा बिल्स कलेक्ट करने गया है अपने कॉलोनी में, पांचवा बैठ के बोल रहा है भाई हम इन सबको मर्ज करके स्टोरी कैसे बनाए, छठा उसमें पोएट्री लिख रहा है। तो कितना कुछ आ गया, उस पर लीडरशिप भी आती है, नेगोशिएशन। नहीं, ये टास्क नहीं यार, इससे अच्छा मुझे लगता है ये टास्क करेंगे तो मैडम को ज्यादा अच्छी बात समझ में आएगी। यानी कितना कुछ टास्क उन्होंने सीख लिया। और दूसरी बात, मॉडर्न वर्ल्ड में कितना सारा नॉलेज है, उन सब के लिए एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है कंप्यूटर यूज करते हैं तो सही काम के लिए यूज करेंगे, क्योंकि आपने उनको बोला आपको मुझे स्टेटिस्टिक्स चाहिए, लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स चाहिए, साइट ये है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन विकिपीडिया अंधाधुंध काम मत करना, क्योंकि उसमें से गलत डेटा भी मिलता है। तो करेक्ट साइट चुनना, काम करना, क्या कहते हैं, इंटरनेट का यूज करके क्वेश्चनर बनाना, सर्वे फॉर्म बनाना, गूगल फॉर्म बनाना, जो भी कराना, बहुत कुछ आप करा सकते हैं। कैसे करना है, हाउ टू बिल्ड इट। आप बच्चों को सबसे पहले तो, आपने आज के क्लास में एनवायरनमेंट के बारे में सीखा, आपने सीखा स्नो, वाटर, सीजन्स। नाउ आप मुझे इसका डेफिनेशन बताओ, आप क्या समझे। मैम, वो चीज जो हमें नेचर में मिलता है, लेकिन हमें सही मायने में उसको अच्छी तरह से यूज करना चाहिए, और अगर नहीं यूज किया तो नुकसान बहुत होगा, राइट। यानी कहने के लिए, जैसे अभी कहना नहीं चाहिए लेकिन कोई होगा महाराष्ट्र से, तो मराठा जो एजिटेशन है, मराठा रिजर्वेशन, वो एसएस का टॉपिक है, लेकिन उसका शुगर पैडी, शुगर केन फील्ड से काफी कनेक्शन है, पानी के साथ काफी कनेक्शन है। बारिश कम होती है, पानी कम बरसता है, तो शुगर केन पानी कितना इस्तेमाल करता है, और उसके आधार पे रिजर्वेशन वो बात मांग रहे हैं, क्योंकि जो खेती बाड़ी करते हैं उनकी जो आर्थिक हालात हैं वो थोड़े खराब हैं। इन कितना कुछ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो मुझे स्टेटिस्टिकली बताओ कितना पानी इस्तेमाल होता है, कितना परसेंटेज नदी का पानी इसमें जाता है, इसमें जमीन पे कितने सारे ये शुगर के खेत हैं। अभी एक कनेक्शन आप कितने सारे चीजों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और ऊपर से पानी कम बरसता है तो उसको साइंस लेके आ सकते हो। कहने के लिए आप किसी भी टॉपिक को किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, बच्चों को एक कॉम्प्लेक्स इश्यू को एनालाइज करना, एनालाइज वर्ड का मतलब है बारीकी से उसको ऑब्जर्व करना। मराठा एजुटेशन, मैं आप एक टॉपिक ले रही हूँ, मराठा एजुटेशन, यानी ये तो हमेशा रिजर्वेशन के बारे में हम जानते हैं पहले से, नहीं, हर चीज के पीछे कहानी है, उस कहानी को समझो, बारीकी से समझो। वो ट्रेडिशनली फार्मर्स हैं, पानी कम बरसता है, मराठा रीजन ड्राई रीजन में आता है, प्लेटो रीजन में आता है, वहां पानी क्यों बरसता है कम, क्योंकि वहां वेस्टर्न घाट्स कुछ ही एरिया में है। तो सीजनल चेंजेस से क्या होता है, क्या कहते हैं, पॉपुलेशन पर स्क्वायर मीटर कितना है, कितनी कुछ चीजें आ गई, बहुत कुछ चीजें आ गई। और फिर उसको एक रिपोर्ट में फिक्स करने को बोली, उस ग्रुप में किसी बच्चे को रिपोर्ट लिखने को बोली। और इसमें बच्चों को इंटरनेट सोर्स मटेरियल्स के लिए यूज करने को मिलेगा, बच्चों को अपने काम पे, अच्छा, मैं आपको पहले हफ्ते के एंड तक आपका इतना काम हो जाना चाहिए, रफ ड्राफ्ट तैयार हो जाना चाहिए, दूसरे हफ्ते तक आप इतना काम तो जरूर करेंगे, यानी इंडेक्स पेज आपका रेडी हो जाना चाहिए, इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए, और एक बैकग्राउंड नॉलेज दे देना चाहिए। तीसरे हफ्ते हम मेन प्रोसेस पे आएंगे, जहां पे आप ग्राफ वगैरह चिपका सकते हैं, आप पिक्चर्स चिपका सकते हैं। चौथे हफ्ते आप इंटरव्यू क्वेश्चनर वगैरह लगा सकते हैं, और पांचवें हफ्ते आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। और छठे हफ्ते, ये तो अगर लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट बना, अगर 4-5 दिन का है तो आप बोल सकते हो आज के दिन के एंड तक ये हो जाना चाहिए, कल के दिन तक के एंड तक ये हो जाना चाहिए क्लासरूम के अंदर। यानी आप प्रोग्रेस पे बच्चों से रिफ्लेक्ट करा सकते हो कि क्या आपका काम टाइम पे चल रहा है कि नहीं, क्या क्या स्किल चाहिए टाइम पे काम करने के लिए, और कितने लोगों को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है और मैं इंटरनेट अच्छा ढूंढती हूँ, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि भाई तू इंटरनेट से ये सोर्स, ये टॉपिक पे ढूंढ के लाना, और तू ही इस पे रिपोर्ट लिखना। लेकिन मैं बोलूंगी रिपोर्ट तो लिख लूंगी, लेकिन मुझे लिखना नहीं आता, यानी मुझे अच्छी तरह से उसको ड्राफ्ट नहीं करना आता। तो कोई इंग्लिश में बेहतर हो तो बोलेगा मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, लेकिन तुम लिख लो, मैं तुम्हें ड्राफ्ट दे दूंगी। तो मैं राइटिंग अच्छी करके कॉपी मारूंगी, जिसने ड्राफ्ट लिखा है इंटरनेट से सर्च करके मटेरियल दे दूंगी। हर एक के क्वालिटी के आधार पे काम करने से हर एक के स्किल्स के बारे में बच्चे जान जाएंगे। इससे क्या होगा, हम एक दूसरे के स्किल्स के बारे में ज्यादा सीख सकेंगे। दूसरी बात, कोलैबोरेट करना सीखेंगे। आप ये मान लीजिए, ये वो दुनिया है जहां कोलैबोरेशन की सख्त जरूरत है।
आज ऐसी दुनिया है जहां हो सकता है एक पेशेंट बिहार में हो, उसके ऑपरेशन कराने के लिए उसको दिल्ली जाना पड़े, लेकिन दिल्ली का डॉक्टर बोलता है मैं आ नहीं सकता, आप बिहार के हॉस्पिटल में करा लीजिए। अब हॉस्पिटल दिल्ली का डॉक्टर जो है ऑनलाइन देखता है और कंसल्ट करता है शायद स्विट्जरलैंड में दूसरे डॉक्टर को, ये दोनों मिलकर बिहार के एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं और वो डॉक्टर तीसरे व्यक्ति की सहायता लेता है कि दवाइयां क्या क्या देनी चाहिए। हो सकता है डॉक्टर एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर बांग्लादेश से रिपोर्ट दे रहे हैं। यानी दुनिया छोटी हो गई है, कोलैबोरेशन के ऊपर आधारित है। कोलैबोरेशन यानी मिलकर काम करना 21वीं सदी का एक स्किल है, राइट? एक एक टैलेंट है, स्किल है, कला कौशल है, तो ये भी आपको सीखना जरूरी है। और ये सब ऐसे काम करने से कला और कौशल की जो है बेहतरी हो सकती है। एक्टिविटीज, पॉसिबल एक्टिविटीज क्या क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन आंसर्स आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हो। अच्छा पहले लिख तो लो, आपको क्या समझ में आता है आप अपने आप से कंस्ट्रक्ट करो। चलो गलत भी लिखो, पहले दिन गलत लिखेंगे, दूसरी बार गलत लिखेंगे, तीसरी बार खुद समझ जाएंगे जब टीचर बोलेगी इस पे ये चेंजेस कर सकते हैं। देखो बेटा आंसर लिखते वक्त मैंने आपको आंसर तो बोल दिया, तो आपने पूरे ही टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ को छापना नहीं है, उसमें से पॉइंट्स लिख के करने। लेकिन मेरे पहले ड्राफ्ट में मैंने पूरे टेक्स्ट बुक को छाप मारा, लिख दिया छाप के। अब मैं टीचर मुझे बताती है कि बेटा उसमें से इंपॉर्टेंट चीज ऐसा लिखते हैं, बीच वाले पॉइंट्स लिखते हैं, आप मुझे पॉइंट्स में देखो और इसका स्टार्टिंग लाइन ऐसा होना चाहिए, एंडिंग लाइन ऐसा होना चाहिए। जब ऐसा बोलते हैं तो बच्चे को समझ में आता है अच्छा मैडम ऐसा आंसर चाहते हैं, अगली बार वो करेक्टली समझाएंगे, आपको लिख के देंगे। यानी क्वेश्चन आंसर्स में भी आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लगा सकते हो। क्विज भी आप करा सकते हो। क्विज के जैसे आपने केबीसी देखा होगा, सिंपल क्वेश्चन से चालू करते हैं और जा जाके वो सबसे ज्यादा कठिन सवालों पे आते हैं, बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपकी जनरल नॉलेज पे वो बिल्ड कर रहे हैं, राइट? रिसर्च भी ऐसा ही होता है, छोटे से पॉइंट को लेके चलो हम इस पे आज रिसर्च करते हैं। आज बार बार यहाँ लाइट क्यों जा रहा है, गुजरात में तो लाइट नहीं जाती है, तो कुछ तो होगी जो प्रॉब्लम है, चलो हम रिसर्च करते हैं। आजकल हमने देखा है कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो है एक दूसरी तरफ केंद्रित किया जा रहा है, तभी लोगों के पास लाइट पावर सप्लाई कम हो रहा है। यानी रिसर्च तो करिए, ढूंढिए तो जरूर, और फिर रिपोर्ट लिखवाइए। रिपोर्ट लिखाने से भी कंस्ट्रक्शन सीख जाते हैं बच्चे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेरे स्कूल के सामने बड़े सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, स्कूल की बसेस खड़ी होती हैं, तो इस एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए? एक तरीका है स्पीड ब्रेकर लगाने का, या दूसरा तरीका है बच्चों को, एनसीसी कैडेट्स को या बच्चों को, मॉनिटर्स को खड़ा करने का, ताकि पेरेंट्स और दूसरे बसेस ध्यान से धीरे से चलाएं। चौथा तरीका है लोगों को, टीचर्स को लगाने का। जो भी है आप प्रोजेक्ट करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। कभी कभी फील्ड ट्रिप में बच्चे जाते हैं तो भी बहुत कुछ अपना नॉलेज बढ़ा के आते हैं। अच्छा आज तक मुझे लगा था कि इसको ये कहते हैं, मैंने आज देखा इस चीज के तो 4-5 वैरायटी मुझे फील्ड ट्रिप में नजर आई, राइट? तो मेरा जो है नजरिया बढ़ गया। लेकिन मुझे पहले से पता था कि अरे पक्षी यानी वो जिसके दो पंख होते हैं, एक पूंछ होती है, चोंच होता है। लेकिन पक्षी भी कितने जात जात, राइट? कहने का मतलब बिल्ड किया एक पक्षी। बचपन में पक्षी का एक फोटो देखा था, बड़े होने के बाद पता चला पक्षी तो कई सारे किस्म के होते हैं, उसमें मयूर भी एक पक्षी है, राइट? ऐसे ही मीडिया हम यूज कर सकते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट के सहारे हम काम कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के सहारे काम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे तब पता चलेगा कि इसके साथ वो, उसके साथ ये, सारे रिएक्शंस आ जाते हैं, आप समझ पाते हैं। आर्ट, मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे हल्दी और कुमकुम के साथ भी आर्ट करने को मिलेगा, या फटे कपड़े के साथ काम करने को मिलेगा। मैंने फटे कपड़े लिए, उसके काट काट के पीसेस बनाए, उसको जोड़ दिए और एक कोलाज बना दिया, बड़ा अच्छा दुपट्टा बन गया। डिजाइन, आज तक मैंने स्क्वायर डिजाइन ही सुंदर लगा था, उसी स्क्वायर को टेढ़ा करेंगे तो डायमंड दिखता है। नजरिया बदल दीजिए। वेज ऑफ एक्सप्रेशन, वेज ऑफ एक्सप्रेशन में जैसे अभी आजकल एक टॉपिक आया हुआ है सीबीएसई से, भारत के भाषा का पर्व जो है मनाना, यानी अलग अलग भाषाओं को प्रमोट करना, तो वेज ऑफ एक्सप्रेशन वहां आता है। फिर रोल प्ले आप कर सकते हैं। रोल प्ले करने के लिए पहले नाटक लिखना पड़ेगा या स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, तो स्क्रिप्ट बच्चों से लिखवा सकते हैं और बोल सकते हैं नहीं ये मैसेज इस नाटक के आधार पे बाहर आना चाहिए। तो बच्चे पहला ड्राफ्ट लिखेंगे, यार इस पे मैसेज अच्छा नहीं आ रहा, फिर दूसरा ड्राफ्ट लिखेंगे, हाँ इस पे थोड़ा मजाकिया एलिमेंट भी डाल सकते हैं। कर करके बच्चे बहुत इसको बेहतर कर सकते हैं। कभी कभी आप नोट्स बनवा सकते हैं। अरे कल तक मैंने डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन लिखा था, आज मुझे पोल्यूशन का मतलब समझ आया, आज मैं पोल्यूशन को और बेहतर रूप से डिफाइन कर सकती हूँ क्योंकि आज मैंने कुछ और भी सीखा, राइट? एक्सपीरियंशियल लर्निंग,
मैंने सीखा है कि हॉट चीजें छूनी नहीं चाहिए, कोल्ड चीजें छूनी नहीं चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आया था जब तक मैंने गर्म तपेले को हाथ से नहीं छुआ या आइस केस को नहीं छुआ। अब मुझे समझ में आ गया कि गर्म चीजें क्यों नहीं छूनी चाहिए, बचपन से सीखी थी, आज समझ में आ गया। उससे क्या होता है, गर्म चीज मेरे बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है और मेरे सेल्स जो है जल जाते हैं, फिंगर के सेल्स। ऐसे ही ठंडी चीज को छूने से भी मेरे सेल्स इनिशियली नम हो जाते हैं, क्योंकि देर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। Learning by teaching or teaching by learning, both. Now I have a question for all of you. What do you think constructivism, what kind of constructivism can we have? आप chat box में लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के अलग अलग आप क्या क्या यूज करते हैं अपने क्लासरूम में। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी चीजें आपको दिखानी है। तो अगर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ 4-5 कमेंट भी हो तो चलेगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म आप कैसे दिखाना, आप कैसे पढ़ाएंगे। थैंक यू राहुल सर। Can you write down where you can handmade models? Correct. So you can get children to make models and explain concepts using handmade models. Yes. What else? Can we have a few more examples? Thank you, Alice ma'am. How do you think constructivism chart based? Okay, fine. So you show a few charts and then ask them to connect it. Yes, you can give group activities, and once you give the group activities, at the end of the group activity, tell them, what did you learn? Ma'am, we learned about this concept, this concept, this concept. Okay, but apart from that, what did you learn? We learned how to collaborate. We learned how to respect each other's opinion. We learned how to present our, ourselves. We learned how to throw our voice onto the audience. We learned that audience will judge, so we are supposed to face the audience and we are supposed to speak. So a lot of things that they do, story making, correct. So constructivism is also you can also teach them through story building, correct, right. Thank you so much. There are 2 to 3 types of constructivism: cognitive constructivism, social and radical forms of constructivism. These are 3 different people जिन्होंने they are actually इन्होंने जो है साइकोलॉजी पे काफी ज्यादा ज्ञान पाया था, जॉन पियाजे, जेरोम ब्रूनर एंड वाइगोत्स्की। इन सबके जो थियोरीज हैं ये भी आप शायद जानते होंगे, बीएड किया है तो आपने जरूर सीखा होगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, चलो जल्दी से देखकर हम समझते हैं कि हमने क्या समझना है। Hey everyone, सुनाई this दे is रहा है? Teacher Ira, and in this video, I'll be giving you a short introduction on the learning Yes, ma'am. theory constructivism, creating your own learning experiences. Yes sir. Now please Before watch the video. constructing a house or building, we always first lay down good foundations. These foundations will be the ones where you'll build everything else until the entire structure is completed. The same principle applies in the learning theory constructivism. It believes that new information is built from things that you already know. As a constructivist instructor, you aim to support knowledge rather than construct it, and engage in real-world tools and social interactions. Last is to give your students the opportunity for active construction of knowledge based on their own personal experiences. There are 2 major perspectives under constructivism. The first is from the infamous Swiss psychologist John Piaget and his cognitive constructivism, which was primarily based on his stage theory of cognitive development. Second is Lev Vygotsky's social constructivism based on his social cultural theory. Now let's try to learn more about each kind of perspective. या प्लीज ध्यान से सुनिएगा, 2 किस्म के कंस्ट्रक्टिविज्म हैं। John Piaget's cognitive दिमागी constructivism तौर पे states that different stages of knowledge is dependent on the learner's own cognitive development. They try to connect or modify what they already know to accommodate new information. This theory mainly focuses on learning from a general to specific concept. On the other hand, ओके, हियर व्हाट यू लर्न जनरल टू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे पहले से मुझे रोड सेफ्टी के बारे में पता था, सेफ्टी रूल्स के बारे में पता था, लेकिन मुझे रोड पे मैडम ने कहा था लुक टू योर लेफ्ट देन टू योर राइट देन टू योर लेफ्ट एंड देन क्रॉस द रोड, ये हमने बचपन में सीखा है। लेकिन अब मुझे रोड साइंस, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उसको मैप पे कैसे दर्शाते हैं वो सीखने को मिला। सो आई हैव ऑलरेडी लर्नड एज अ किड रोड सेफ्टी रूल्स. Road is something that is built black in color. It is there in, on the outside my colony, that's called a road. But cognitive का मतलब है जो general knowledge है
उसके आधार पे आपने स्पेसिफिक नॉलेज सीखा. So you are building it and now modifying my knowledge. So now all roads are the same. No, you have tarred roads, you have kacha roads, you have pakka roads, but they are RCC roads. You have different kinds of roads. So you can talk about that. All right. But for that, I should know what a road is. If I don't know what a road is, how can I talk about different kinds of roads? So that is cognitive development. That is Jean Piaget's concept of cognitive development. दिमाग में जो बसा है उसके आधार पे और नॉलेज बढ़ाना. अब ये टॉपिक ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जहां वाइगॉट्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में कहा है. Hey everyone, this is Teacher Ira, and in this video, I'll be giving you Oh, a short sorry. introduction I just to the quickly- learning theory I have constructivism. just missed out. Yeah. The second topic. Foundations of knowledge is built upon collaborative learning. सब मिलकर You सीखते learn हैं. best when you interact and converse with others. Thus, it focuses mainly on having group activities for social interaction. ओके ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है जहाँ पे वो कहते हैं कि सीखना सब साथ में करते हैं. सारे बच्चे सब कुछ साथ में सीखते हैं. तो पढ़ाई जो है पूरी सोशल सेटिंग में होती है. क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज सीखना, मैं आपके साथ बात करूं तब मैं बचपन में आपके साथ बात करूं तब मुझे पता चलता है अच्छा इसको कहते हैं पानी, इसको कहते हैं बॉटल, इसके अंदर को कहते हैं पानी. जब आप पानी बोलते हो या आपने कुछ और शब्द उसका नीर यूज किया या कुछ और यूज किया तो मैंने आपसे सीखा, आपने मुझसे सीखा. सो ऑल दिस हैपेंस ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शंस. ये नहीं कि पहले से मेरे पास नॉलेज था और मैंने उसके आधार पे अपनी नॉलेज बढ़ाई. तो यानी कि यहाँ पे वाइगॉट्स्की के थ्योरी के हिसाब से ग्रुप एक्टिविटी से सोशल इंटरेक्शन से बच्चों की ज्यादा नॉलेज बढ़ती है. राइट. So, Hey everyone, yeah. So, the teachers are the ones who transfer knowledge to the students. ये मैं आपको in the नहीं form समझाना of चाहूंगी, books. आप ऑलरेडी सुन चुके हैं. टीचर सेंटर्ड होता है, हर बच्चे पर अलग अलग फोकस होता है ट्रेडिशनल क्लासरूम में. लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हो तो कैसे होगा? बच्चे In some साथ में सीखेंगे. constructivist classrooms, we make our students learn by making them experience lessons. हर बच्चा firsthand. अपना टॉकिंग करेगा, थिंकिंग करेगा, डूइंग करेगा. Where they apply concepts, brainstorm, and collaborate with others. So this is interesting because I hope you've learned a lot about today's yes, brief we video. have. Now, actual difference के बारे में. So let's quickly see what the actual difference between traditional and constructivist classroom is. Once you understand this, it's very easy. In this video, we will try to look into how we can effectively use 5E model of constructivist approach. in इसको the कहते हैं teaching 5E process. मॉडल. बहुत इंपॉर्टेंट है. बड़े सारे मैनेजमेंट स्कूल्स में 5E मॉडल के बारे में कहते हैं. देखो, ब्लाइंड मैन, अंधे आदमी और एक हाथी, ये 5E है. This is considered to be one of the best model under constructive approach of teaching learning. Here, teacher of a blind school takes 3 blind students and they come across different parts of the element. Blind students represents your student's perception on a new concept. अच्छा, यहाँ पे जो ब्लाइंड स्कूल है वो थोड़ा हाइपोथेटिकल है. कहने का मतलब टीचर जो है ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाती है, 3 बच्चे हैं जो ब्लाइंड है. एक्चुअली ब्लाइंड नहीं है, लेकिन बच्चों को अगर आप ब्लाइंड मानते हो और बच्चों को या आप उनके आंख बांधकर उनको एक हाथी दिखाते हो, लेकिन 3 अलग जगह खड़े हैं. एक उसके सूंड को पकड़े हुए है, एक उसके टांगों को पकड़े हुए है, एक उसके बॉडी को पकड़े हुए है, तो हर एक का नजरिया बदल जाएगा. कहने का मतलब हम सब अंधे होते हैं जब पहली बार कुछ सीखने के लिए जाते हैं. हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू सीखते हैं. जैसे मैं अगर क्रिकेट देखूंगी तो मैं बोलूंगी अच्छा क्रिकेट यानी है ना वो राउंड सा कुछ ग्रीन गार्डन जैसा है, उसमें 2 लोग खड़े रहते हैं. और फिर दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, हाँ ये वो गेम है जहां बहुत ज्यादा भाग दौड़ होता है, कैच करते यानी बॉल को पकड़ते हैं एक बल्ले से, यानी दूसरा व्यक्ति अलग से सोचेगा. तीसरा सोचेगा इसमें पॉइंट्स होते हैं, 60 ओवर होते हैं, पूरा मैच है. यानी हर एक ने अपने हिसाब से नजरिया ले लिया. एक सोचेगा राउंड स्टेडियम में है, वो शेप देखता है क्रिकेट फील्ड का. दूसरा देखता है कि इसमें बहुत सारा एक्शन आता है. तीसरा व्यक्ति सोचता है इसमें तो मैथ बहुत आता है. तो आप सोचिए हर एक का नजरिया एक ही चीज के बारे में कितना बदल गया. कुछ ऐसा ही है एक ब्लाइंड, ये एक हाइपोथेटिकल मॉडल है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का मतलब क्या. हर एक अपने अपने व्यू पॉइंट्स को बताएंगे और फिर मिलकर बताएंगे. जैसे मैं बोलूंगी हाँ वो तो एक राउंड सा स्टेडियम है, तो दूसरा बोलेगा हाँ राउंड स्टेडियम में लोग भागते हैं. तो और तीसरा बोलेगा लेकिन भागते ही नहीं, रन्स लगाते हैं, 50 ओवर का गेम है. अब मेरे दिमाग में बसा अच्छा राउंड स्टेडियम है,
वहां लोग भागते हैं, पकड़ते हैं और 50 ओवर का मैच होता है। तीनों मिलकर तीनों बच्चों के दिमाग में आ गया, बात समझ में उनको आ गई। अभी हम इसको एक और बात लेकर या Blind students are assigned a task to perceive an elephant by touching. Each student approaches the elephant from different directions. Using their own perception, the student explains to their teacher about the elephant in the classroom. एक सोचता है बोर्ड है, एक सोचता है पेड़ है, तीसरा सोचता है हाथ है। अब जब टीचर पूछती है, Each blind student creates their own assumptions from their previous experiences and perspectives. Teacher hears all the three students' explanations about the elephant where one says it's like a sling. The second student expressed it as a human arm. And the third student predicts elephant as tree. Teacher inquires and gives further explanation on the concept of elephant, based on student assumptions and perceptions to arrive into a common concept of elephant. Lastly, teacher confirms correct concept of अब students. सब कुछ सबने अपना अपना शेयर किया, फाइनली टीचर कंफर्म करती है, हाँ तुमने जो बात कही सही है, हाथी का सूंड जो है इंसान के हाथ के जैसा है। हाँ तुमने जो कहा सही है, हाथी का बॉडी जो है इतना फैला हुआ है कि वो एक ब्लैक बोर्ड जैसा नजर आता है। और तीसरा व्यक्ति जब बोलता है कि उसके पैर जो है वो पेड़ के तरह, पेड़ के ट्रंक की तरह है, तो सही कहा आपने, हाथी के पैर बहुत मोटे हैं और बिल्कुल पेड़ के ट्रंक के जैसे नजर आता है या महसूस होता है। तो तीनों के पॉइंट्स को लेकर टीचर ने बात बताई और Thank you for watching इस this चीज video. को We will be happy लोगों to ने receive समझ valuable लिया, feedback. Send it and see. राइट। यानी कहने का मतलब 5E एजुकेशन, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट स्कूल्स में बहुत यूज होता है। पहली बात तो एंगेज, बच्चों को एंगेज कीजिएगा। कैसे? या तो स्मार्ट बोर्ड में वीडियो दिखाइए, पीपीटी दिखाएं, क्वेश्चंस पूछे, या KWL। KWL का मतलब है व्हाट डू यू नो, के का मतलब नो, व्हाट डू यू वांट टू नो, एंड व्हाट हैव यू लर्नड और व्हाट यू वांट टू लर्न। तो KWL या तो बुक पढ़ा के या उसके बारे में एक्टिंग करा के या कोई गेम इंट्रोड्यूस करके एक कॉन्सेप्ट आप सिखा सकते हैं, राइट। एक बार एंगेज कर लिया, बच्चों को शामिल कर लिया, मशगूल कर लिया, अब एक्सप्लोर करो। चलो अब एक बार हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट है, अब अलग अलग टीम्स बनाकर तुम ये ढूंढो, तुम ये ढूंढो, तुम ये ढूंढो, ब्रेकआउट करके ग्रुप टास्क कर दिया। अब सब ग्रुप टास्क करने के बाद वापस आ गए, अब सब मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि भाई हमने ये देखा, हमने ये देखा, सबने मिलकर रिपोर्ट किया और एक्सप्लेन एक दूसरे को किया कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं रह गया। जब सब कुछ कर दिया तो समझ में आ गया कि इसमें से कुछ चीजें निकालनी है, कुछ चीजों को लेनी है। अब बच्चों को एक कॉमन नॉलेज मिल गया, अब उसके आधार पे उसको और आगे बढ़ाएंगे, करेक्ट नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जैसे बढ़ा लिया, अब उनको देखना पड़ेगा कि हमने चालू किस लिए किया था और हम अंत किसके साथ करें। हमने ये शुरुआत में सीखा था कि हमें एनवायरमेंट पोल्यूशन कैसे हो रहा है, उसमें हमारा योगदान कैसे है, और हमने ये समझ लिया कि जितने लोग एसी यूज करते हैं, जितने लोग पेड़ कम लगाते हैं अपने कैंपस में, या जितने कम पॉट्स हैं उनके घरों में एसी ज्यादा है, या गाड़ियां बहुत ज्यादा है, काश गाड़ियां कम होती, पर फैमिली 4-4 गाड़ियां। ये हमारा फाइनल नतीजा या रिपोर्ट या मॉडल हो गया कि पोल्यूशन तो हर एक व्यक्ति बड़े बड़े शहरों में कॉज करता है। और कैसे कॉज करता है? ऐसे कॉज करता है। इसलिए मेट्रो का होना जरूरी है, या ट्रेन, क्विक ट्रेन का होना जरूरी है कि सारे लोग एक मेट्रो ट्रेन में बैठे और गाड़ियों पे निर्भर ना रहे, रास्ते में ट्रैफिक कॉज ना करें। यानी आप सोचो कहां से कहां तक अब लेके गए बच्चों। ये तो कुछ चीजें हैं जो आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। टीचर्स कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीके से को कैसे अपना सकते हैं, देखिए। एक्सेप्ट एंड एनकरेज स्टूडेंट, लेट स्टूडेंट इनिशिएट आइडियाज। वो लेके आए, मैडम हम इस चीज पे बात करना चाहेंगे, हमारे आधार ये हैं, हम, क्या आपको ठीक लगता है? कल परसों यानी पिछले हफ्ते नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने की बात की थी, तो बच्चों को लगाए उस काम पे और फिर पूछें कि क्या आपको लगता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए 70 घंटे की जरूरत है, या 70 घंटों में 7 घंटे भी आप ढंग से काम करते हो तो काफी है, शिद्दत से काम करते हो तो काफी है, या 70 घंटे भी आपको कम पड़ेंगे। डिस्कशन कराइए।
फिर उसमें स्टूडेंट लीडरशिप, कोलैबोरेट, एक दूसरे के साथ सहमत होना, एक दूसरे के विरोध में भी बोले तो तहजीब से विरोध करना, और ढूंढना, इंफॉर्मेशन को ढूंढना, नतीजा क्या है उसके बारे में बात करना, encourage alternate sources of information। मैडम ये लाइब्रेरी के बुक में मुझे मिला, अरे लेकिन लाइब्रेरी का बुक पुराना है, नए बुक में ऐसा नहीं है, तो मैंने नहीं ढूंढा क्योंकि मेरे लाइब्रेरी में यही है, ऐसा नहीं। अलग अलग सोर्सेस को ढूंढे, एक्सपर्ट्स को पूछेगा, क्योंकि हो सकता है बुक में कुछ और हो, सही में कुछ और हो। बच्चों को कॉज एंड इफेक्ट के बारे में सोचने को बताएं, बच्चों को पूछे कि आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, और बच्चों को कभी कभी प्रिडिक्शन के लिए भी आप इंकरेज करें, बच्चों को आइडियाज पूछें, बच्चों से आइडियाज पूछें, और टेक्स्ट बुक के अलावा भी आइडियाज पूछें, उनको एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करने की बात पूछें। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि ये सवाल आप नहीं पूछ सकते, तो बच्चा चैलेंज के लिए तैयार हो जाएगा, सवाल पूछेगा, नया कॉन्सेप्ट ढूंढेगा, आइडिया निकालेगा। और इस समय सभी समय इस पूरे कार्यक्रम या इस पूरे पद्धति के साथ साथ वो दूसरों को रेस्पेक्ट भी करना सीखेगा, क्योंकि आपका आइडिया मेरा आइडिया दोनों उतना ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैंने जो ढूंढा उसमें थोड़े ज्यादा मटेरियल्स हो, आपने जो ढूंढा उसमें कम हो, या वाइस वर्सा हो, लेकिन वी नीड टू वर्क टुगेदर। ऊपर से सेल्फ एनालिसिस, यार मुझे लगता है मुझे थोड़ा और काम करना चाहिए था, बाजू वाले ग्रुप ने तो बहुत ज्यादा रिसर्च कर लिया, तो वो मुझे लगा। दूसरा, उन्होंने तो एविडेंस एक्चुअली कलेक्ट किया, 4-5 घरों में जाके पूछ के, मैं तो एक ही घर में गया था, मुझे भी 4-5 घर जाके पूछना पड़ेगा, ताकि मैं जो आइडिया बोल रहा हूँ उसके लिए मेरे पास सपोर्ट करने के लिए प्रूफ हो। और जैसे प्रूफ आ गया, अरे ये तो हमने कुछ और सोचा था, ये तो बना कुछ और। आपने देखा ना वो एलिफेंट की कहानी, ब्लैक बोर्ड, ट्री और हाथ नजर आए, जब टीचर ने इन सबको शामिल किया तो वो एलिफेंट निकला, राइट। ऐसे ही लोकल रिसोर्सेस को भी यूज कर सकते हैं। अरे हम एंटार्क्टिका के ग्लेशियर के बारे में कहते हैं, क्या हमने आज तक जहां हम रहते हैं वहां के पैटर्न्स ऑफ चेंज देखा है, क्लाइमेट में चेंज कैसे देखा है? पहले बहुत ठंड नहीं थी, आजकल बहुत ज्यादा ठंड है, या पहले इतनी बारिश नहीं हुआ करती थी, अब बारिश बहुत ज्यादा है, या पहले बारिश अच्छी हुआ करती थी, अब सूखा आ गया है। जो भी है, लोकल इंफॉर्मेशन को लेके भी आप कनेक्ट कर सकते हो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स के साथ, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ। एंड कभी कभी इन चीजों को क्लासरूम से आगे भी ले जाया कीजिए, क्लासरूम के अलावा, क्लासरूम के बाहर, स्कूल के बाहर भी टास्क लोग कर सकते हैं, और लोगों को सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए भी जरा एंकरेज कीजिएगा। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद ही पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ ये साइड में जो 5-6 बड़े बड़े ब्लैक बोल्ड लेटर्स हैं वो पढ़िएगा, कि जो पियाजे क्या बोलते हैं उनके थियरी के हिसाब से, वो पियाजे पूरे दिमाग के आधार पे काम करते हैं। दिमाग में ये स्टेज बना, दिमाग फिर ऐसा बढ़ा, दिमाग में ये आइडिया आ गया और दिमाग ने ऐसे पढ़ाई की। जबकि वाइगोट्स्की कहते हैं कि जितने आप लोगों को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मजबूर करें, उतना वो ज्यादा सीखेंगे और इस हिसाब से अपना नॉलेज बढ़ाएंगे। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है बहुत इजी, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आपको ही समझना पड़ेगा। मेन चीज क्या है कि इनके कॉन्सेप्ट का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें चलता कैसे, मैकेनिज्म ऑफ चेंज, ये चलता कैसे है, बच्चों की तैयारी के बारे में बताया गया है, बच्चों का रोल, किरदार क्या है, टीचर का किरदार क्या है, और अंत में दोनों में फायदे क्या हैं। पियाजे जो है दिमाग के आधार पे काम करते हैं, और वाइगोत्स्की सोशल स्किल्स पे काम करते हैं। ये मैं आपको करने को नहीं बोलूंगी। मेरे पास कुछ सवाल भी हैं आपको पूछने के लिए, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? हो चुका है सेशन लगभग खत्म, ये क्विज है और इसके बाद क्वेश्चन खत्म। तो मेरे सामने ये सवाल है, 2 मेजर कंस्ट्रक्टिविज्म के टाइप्स क्या क्या हैं, किसने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी दी थी, और 3 चीजें जो है पियाजेस थियरी में क्या क्या आती हैं। जल्दी से आंसर लिख सकते हैं? जल्दी से आंसर लिख लीजिए, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में खत्म कर देती हूँ, 10 सेकंड लगेगा आंसर देने के लिए। आप लिख सकते हैं आंसर? ओके, अरुण सर ने आंसर देना चालू किया। सर क्वेश्चन नंबर का देखिए, बताइए आंसर, 1 का है कि 2 का है कि 3 का है? आप जो लिख रहे हैं बी, 1B, या somebody has written 1B, cognitive and social, all right। so second वाले क्वेश्चन के cognitive construction theory किसने दिया? ओके, जॉन पियाजे। और थर्ड, क्या क्या चीजें हैं 3 की एस्पेक्ट्स ऑफ पियाजेस थियरी, यानी दिमागी तौर पे जो थियरी है उसके 3 एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? 3.3। ओके, आई एम गिविंग यू द आंसर, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, पहले तो एसिमिलेट करना, लेना, नॉलेज को ज्ञान करना, उसको अपने दिमाग में बसा देना, यानी अलग अलग जगह पे उसको खाने दे दे के बसा देना,
और उसके बाद जैसे आप करते हैं ना, एक जार के अंदर नॉलेज भरते हैं, पत्थर भरते हैं जार के अंदर, तो पहले तो पत्थर भरते हैं, फिर उसको एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद उसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि सब कुछ शांत इक्वल लेवल पे आ जाए, यानी दिमाग को बिल्कुल ही फोर्स नहीं कर रहे हैं और वो अपने लेवल पे सेट हो गया है। और ये आखिरी के 3 सवाल, वाइगॉत्स्की थ्योरी क्या है, वाइगॉत्स्की की थ्योरी क्या है, जेरोम ब्रूनर और पियाजे की थ्योरी सिमिलर है, क्योंकि दोनों ने विश्वास किया था कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो कैसे डेवलप किया जाए, तो ये किस चीज के बारे में बताता है। और ये तीसरा है, छठा है लेव वाइगॉत्स्की के बारे में। ये आपको क्या लगता है आंसर क्या हो सकता है? या oh very good, 4A, fine, 4A, though so many people are giving answer 4A. 5, what about 5? I can see 5th question's answer, some of you say B, okay, some of you say C, both, all right. And 6th question, what do you think is the answer? It's the last question, khatam quiz. 6th question का आंसर भी बता दीजिए, किसी ने 6th का अभी तक नहीं लिखा। हाँ A, somebody has written 6th था A, नहीं, ये है आंसर। वाइगॉत्स्की की थ्योरी सोशल थ्योरी है, जेरोम ब्रूनर और पियाजे दोनों कॉग्निटिव थ्योरी के आधार पे काम करते थे, और लेव वाइगॉत्स्की मानते थे कि आप नॉलेज तब बढ़ाओगे जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, यानी कोलैबोरेट करके काम करेंगे। और इसी के साथ मेरा सेशन जो है खत्म हो चुका है। अगर आपको कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। ठीक 5 बज गए हैं और मैंने अपना सेशन भी खत्म कर दिया है, और अगर आपके पास कुछ वाकई में पूछने के लिए नहीं हो तो मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। Thank you, ma'am. Thank you for the wonderful session, ma'am. Okay, thank you so much. So I will take a leave. I believe nobody wants to ask me anything. I have not been seeing any questions. Somebody raised a hand. Do you want to ask me anything? If you want, you can. I will answer. If not, I will take leave. Thank you so much. I think nobody is keen on asking me anything. All right. So I will make a move, sir. Thank you so much for being patient listeners, and see you sometime soon. Bye-bye. Thank you, ma'am.